Hi guys, welcome to Origins Computer Classes once again. Hope you all are doing well. So today I brought a puzzle for you. आप लोगों के लिए एक puzzle लेके आया हूँ. Here some sentences are given. Bank account deposit money is in some language quoted as Z at the rate 20, Z asterisk 70, V asterisk 70. Similarly, for the second sentence, some coding is done and some for the third sentence. What you have to do, you have to find the answer for what will be coming in place of 1 and what will be coming in place of 2. Okay, for 2 there are 4 options. Okay, there are 4 options, you have to select among these. So नाउ आप लोग एक बात पूछ सकते हैं कि आज मतलब प्रोग्रामिंग छोड़ के ये सब क्यों. एक्चुअली सी एप्टीट्यूड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट राउंड इन योर प्लेसमेंट्स. तो ये एक पजल मैं जब सॉल्व कर रहा था ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. वैसे तो इन सारे पजलों में ये जो आपका कोडेड फॉर्म्स होते हैं ये मतलब अनऑर्डर्ड होते हैं. मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं होता है कि बैंक का कोड फास्ट वाला जो कोडेड पार्ट है ऐसा ही हो. बट क्योंकि आप लोगों के लिए इजी हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लोग अभी तक एप्टीट्यूड नहीं किए होंगे या फिर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड नहीं है, वो लोग एक पजल की तरह ले सकते हैं कि मतलब फास्ट वर्ड. ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि बैंक का कोड Z@20 है, अकाउंट इज Z*7, सिमिलरली डिपॉजिट इज V*70. ओके, अकाउंट इज Z*70, but there is some logic the way they are coded. Okay, so you need to find that logic and tell me what will come in place of 1. Okay, similarly 2 में कुछ word था, उसका कोड R modulus 110 आया होगा. Similarly you have to say tell me what is the code in 3, I mean what is the code for hire. Okay, so ये 3 आपको बोलना है. यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके, सो गाइज रेडी. सो दिस इज माई क्वेश्चन. हियर आई हैव. ओके, होप यू हैव गिवन इट अ ट्राई, राइट? ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. नाउ हियर सी, एज आई सेड, बैंक is quoted as Z@20. So let us write it sidewise. See here, bank is coded as Z@20. Right? Now one thing I think most of you have guessed or most of you have solved. We see bank has 4 letters, right? Bank has 4 letters. So we can say this number is coming because as it is, in case of bank we are getting as it has 4 letters we are getting 20. In case of account, as it has 7 letters, 1 2 3 4 5 6 7, right? So in that case we are getting 70. In case of financial, again 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So for 9 we are getting 90. So कुछ तो आप लोग समझ पा ही रहे होंगे. ये 4 के लिए 20, 4 के लिए आया 20, मगर 7 के लिए आ रहा है 70, राइट? और 9 के लिए भी आ रहा है 90. Again, if you see here, for always 1 2 3 4 5 6 के लिए we are getting 30. मतलब we can say this means if there is an if the number of letters in the word are even, that means then it will be multiplied by 5, and if the number of letters are odd then it will be multiplied by 10. Okay, so here as we are having 4 letters, so 4 into 5 we are getting 4 into 5
that is 20, right? And for now, if we go and for odd letters, we are getting odd number of that many letters into 10. So the result in the code. So we can write this point somewhere. I hope you have copied this question. So I'm just erasing this portion to get space. Okay. Or you have to please take a screenshot of this. Okay. Taken. Okay. Erasing. So odd counting means odd counting into 10, odd counting into 10, and even counting is equal to even counting into 10. Even counting into 5, right? Okay. So that is why bank has got 20. 4 into 5, 20. Now सिंबल पे बाद में आते, बिकॉज सिंबल तो बहुत सारा दिख रहा है मुझे. एट द रेट है, फिर वी हैव मॉड्यूलस, देन वी हैव एस्टेरिक्स. ओके, तो सिंबल पे बाद में आते, बट लेटर्स वी कैन सॉल्व, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 टाइप का लेटर दिख रहा है इधर, जेड, वी एंड आर. शायद व्हेन वी सॉल्व कुछ और भी आ सकते हैं, तो इसके लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं. अभी एक चीज समझिए, इधर बी का तो कोई कुछ हो नहीं सकता, बी के लिए जेड आ नहीं सकता, और एन एंड के इफ वी से मतलब इन दोनों का आपस में कोई मिलजुल नहीं है, एन एंड के. बट ए के लिए वी कैन वी से कि बिकॉज हियर इज ए इज एकदम मतलब साइड, एकदम फर्स्ट लेटर ए होते हैं एंड एकदम आखिरी का लेटर जेड होते हैं, राइट? मतलब दे आर ऑपोजिट. तो एक चीज मुझे लग रहा है कि ए का रिवर्स मतलब ए का ऑपोजिट अल्फाबेट जेड है, इसीलिए शायद जेड आया होगा. दैट इज वाई जेड एज बिकॉज ए इज देयर एंड द रिवर्स ऑफ ए. वैसे हम लोग रिवर्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग 27 माइनस 1, मतलब 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट अल्फाबेट. ए एकदम फर्स्ट में आते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट. सो 27 माइनस 1, 26, and 26 is the last alphabet, so that is Z. 27 minus 1, that is equal to 26, that is Z. बट इस तरीके से नहीं सोच के हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ए का एकदम रिवर्स होता है Z, मतलब ए फर्स्ट में आता है इसीलिए एकदम लास्ट. तो इन दोनों को मैं ऑपोजिट बोल सकता हूँ कि ए का रिवर्स Z है. ठीक है, तो अभी बैंक को देख के तो मुझे यही लग रहा है. ठीक है, बैंक और कुछ और चीज़ों को देखकर, तो क्योंकि बी एन के इन लोगों के साथ जेड का क्या रिलेशन बन सकते हैं, अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है, अभी दूसरे चीज़ों में भी चेक करते हैं. तो सेकेंड अल्फ़ाबेट से अभी के लिए ये इतना मुझे समझ में आया कि सेकेंड अल्फ़ाबेट से रिलेशन हो. ओके, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल ऑल्सो, फाइनेंशियल में if I see in financial I is the second letter and I को भी अगर मतलब सेम लॉजिक से अगर देखें, रिवर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं 27 माइनस प्लेस वैल्यू ऑफ दैट लेटर, राइट? वी कैलकुलेट इन द सेम वे. अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 27 माइनस आई का प्लेस वैल्यू इंग्लिश में क्या होता है, मतलब 9th पोजिशन पे आते हैं आई आफ्टर एच आई, ए बी सी डी एफ जी एच आई. तो 9, 27 minus 9, so that is your 18. and 18 किसका प्लेस वैल्यू है इंग्लिश में? so in English मतलब 18 R comes in at 18th position, तो इसीलिए R आया, we can say. ठीक है, मगर एक चीज मुझे लग रहा है कि शायद ये लॉजिक इंस्टीट्यूशन में जा करके गलत हो जा रहा है. बिकॉज for institution we have for institution we can say we are having R modulus 110, because ये 10 इसके लिए आ सकते हैं.
सॉरी राइटिंग मिस्टेक, ये v मॉड्यूलस 50 बाद में आएगा, r मॉड्यूलस 110 and then we have v modulus 50. ओके ठीक है. सो इंस्टीट्यूशन, बिकॉज क्योंकि ये मुझे समझ में इसलिए आया बिकॉज ये लॉजिक तो क्लियर है कि मतलब जितना नंबर ऑफ लेटर्स आपका होगा उतना का इंटू 10 या फिर 5. तो इंस्टीट्यूशन में एक मतलब only in case of institution we have 11 letters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 into 10 110 आया इधर. ओके सो 110. ओके एंड नाउ इधर अगर देखें सेकेंड लेटर इज एन, तो एन के लिए तो आर नहीं आ सकता बिकॉज 27 माइनस एन का प्लेस वैल्यू 14 दैट इज 13. एम आना चाहिए था मगर इधर आर आया. तो थोड़ा अगर सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा. अगर से इधर लार्जर के लिए देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 6 5 30, तो $30 इज राइट. मगर एल के लिए तो कभी जेड नहीं आता. फॉर एल जेड कैन नॉट कम. तो नाउ अनदर लॉजिक. अब थोड़ा सा अदर एंगल में सोचते हैं. See, we can use the logic of consonants and vowels. अभी देखिए we can say कि इधर we are just finding out the reverse of the first vowel. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि we are finding the reverse of the first vowel? देखते हैं if this logic is working or not. तो पहले इधर तो बैंक के लिए A was our first vowel in the word, तो इसीलिए 27 माइनस 1 26. फाइनेंशियल के लिए भी आई वॉज माई फर्स्ट वावेल इन द वर्ल्ड, तो 27 माइनस 9 18. इंस्टीट्यूशन के लिए 27 माइनस 9 18, तो वी गॉट आर मॉड्यूलस एंड ये 110 राइट. तो इंस्टीट्यूशन के लिए मैं इधर इंस्टीट्यूशन को भी लगा लेता हूँ. इंस्टीट्यूशन, सो दिस इज माई 27 माइनस 9 आर मॉड्यूलस, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो दिस 110. आर मॉड्यूलस 110. तो 27 माइनस 9 इज 18 और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18. देयरफॉर आर मॉड्यूलस 110. आई मीन परसेंटेज, ये परसेंटेज साइन है आपका, परसेंटेज साइन. ओके ऑलवेज के लिए इफ आई सी, ऑलवेज के लिए इट इज कमिंग $30 या A is our first vowel, right? So A के लिए Z. Yes, we cracked it. So larger के लिए we can say कि A is our first vowel. First vowel का reverse Z आ रहा है. So two logics. One, first वाला तो आपने देख ही लिया. This is our first observation. Second observation we can say कि Z मतलब we are finding. Hope you have copied this question. अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ. सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारा है दैट इज रिवर्स ऑफ, आई मीन फॉर द अल्फाबेट्स, रिवर्स ऑफ फर्स्ट वावेल. ओके सो ये दो पार्ट्स तो हम लोगों को मिल गया राइट. सो ये दो पार्ट्स तो हम लोगों ने क्रैक कर दिया. नाउ कम टू द सिम्बल्स. ये @ क्यों आ रहा है, ये मतलब परसेंटेज साइन क्यों आ रहा है और ये डॉलर साइन क्यों आ रहा है राइट. तो ये आप लोग सोचने की एक बार कोशिश कीजिए. हाउ आर वी गेटिंग दिस @ ठीक है, दिस आई मीन परसेंटेज सिंबल, दिस डॉलर सिंबल. रेडी. सो ये देखिए सी फॉर सिंबल्स इन लोगों का कोई देखिए, ये लोग आइदर दे आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ लेटर्स, ओके, और दे आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वावेल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स और व्हाट टू से द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. ओके बिकॉज सी इन लोगों के देखिए अल्फ़ाबेट के केस में बहुत सारा केस बन सकते हैं बिकॉज वी कैन फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर. ओके
और वी कैन इंक्रीज बाई +1 +2 ऐसे करके। बट इन दिस मतलब सिम्बल्स के केस में ऐसा कोई मतलब कोई तो इस ये तो सिर्फ सिंबल है, तो इसका तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो इफ़ वी लुक एट दिस केयरफुली, पहले पहले वाले वर्ड्स में 4 लेटर था। आई मीन फॉर 4 लेटर्स वी गॉट @ बैंक, बैंक हैज़ 4 लेटर्स, 4 लेटर्स में हमको मिला @। ओके फाइन। फाइनेंशियल में वी हैव लेट मी काउंट 9 लेटर्स, इसलिए बिकॉज 9 × 10 90 हुआ। सो फॉर 9 लेटर्स वी गॉट आई मीन परसेंटेज साइन, राइट। इंस्टीट्यूशन के लिए भी वी गॉट परसेंटेज साइन। ओके, फॉर लार्जर देयर आर 6 लेटर्स वी गॉट डॉलर साइन। फॉर इंटरेस्ट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, वी गॉट डॉलर साइन। तो सिंबल का लॉजिक तो थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 6, ओके। तो सिंबल्स के लिए वी नीड टू थिंक, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट का कोड दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए तो हम लोग को फाइंड ही करना है, बिकॉज ये 30 तो कभी आ नहीं सकता इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज 3 × 10 इज आई मीन 8 × 8 इज एन इवन नंबर, 8 × 5 इज 40। सो इंटरेस्ट वी नीड टू फाइंड, ओके। This $30 is for higher. I mean, yeah, higher, because I is the first letter, first vowel. So this goes here. Okay. So if we write these observations for symbols, so I am erasing it. Hope you have taken a screenshot of the question. ठीक है, या तो फिर मैं ये observation erase कर रहा हूँ. Hope you have copied this one. So if we have 4 letters, if here I am writing number of letters and symbol. तो बैंक में 4 letters है, we have 4 letters, that is why you are getting @. ठीक है, ये observation हम लोगों का है। बैंक, for bank we have 4 letters and we are getting @. Okay. Financial we have 10 letters. तो इस केस में तो इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल दोनों केस में वी आर गेटिंग परसेंटेज, तो इन लोगों का भी छोड़ते हैं। फॉर ऑलवेज वी आर हैविंग 6 लेटर्स, 6 के लिए वी आर गेटिंग डॉलर सिंबल, बिकॉज here also for larger we got dollar symbol. Larger maybe we have 6 letters, higher maybe we have 6 letters, so we got dollar symbol. Amount maybe we have 6 letters, therefore we got dollar symbol. Okay, fine. Here if we are having, here we have hashtag for so we can say here we are having 5 letters, right? 5 1 2 3 4 5, and 5 is an odd number, 5 के लिए 50 मिला, तो this is our correct code, Z #50। और 5 के लिए we are getting hashtag, ऐसा मेरे हम लोग के पास एक ही कोड, एक ही वर्ड का एक ही कोड है, तो we can say कि 5 के लिए we are getting hashtag, क्योंकि और कोई तो वर्ड्स है नहीं, तो एक्सेप्शन तो नहीं होगा, हम लोग मान सकते हैं अभी के लिए, राइट। 4 5 6 बन गया। अच्छा, किसी किसी जगह पर वी आर गेटिंग एस्टेरिक्स, लाइक हियर वी आर गेटिंग एस्टेरिक्स, ठीक है। तो देखिए एग्जामिन में तो वी हैव ई के लिए वी आया होगा, बिकॉज 27 - 5 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ ई, वी गॉट 22, या 22 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ वी। और इस इधर वी हैव 7 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 10 20। ओके, तो 7 लेटर्स के लिए वी आर गेटिंग एस्टेरिक्स। ऐसे ही मतलब बैंक अकाउंट डिपॉजिट मनी में भी वी हैड 2 एस्टेरिक्स सिंबल्स, वन वाज फॉर डिपॉजिट, वन वाज फॉर अकाउंट। उसमें भी इफ़ यू हैव द क्वेश्चन यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट, आप देखना उस लोगों में भी अकाउंट में ACCOUNT, ओके 7 लेटर्स, तो 7 के लिए वी आर गेटिंग एस्टेरिक्स सिंबल,
ठीक है, ओके। एंड इन दोनों केसेस में वी आर हैविंग परसेंटेज सिंबल। फाइनेंशियल 100, फाइनेंशियल इज हैविंग 9, इंस्टीट्यूशन इज हैविंग 11, ठीक है। वी परसेंटेज से तो हमको फाइंड करना है, इसके लिए 2, ओके। और क्या बोल सकते हैं, और कहाँ इधर वी आर हैविंग परसेंटेज से रिजर्व कितना है इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 इंटू 5, 8 इज एन इवन नंबर, तो इवन इंटू 5 वी परसेंटेज 40, ओके। तो ये 7 तक तो हो गया, ठीक है। तो वी कैन से कि 8 या फिर 8 से ज़्यादा, 8 और ग्रेटर देन 8 के लिए वी आर गेटिंग परसेंटेज से, 8 और ग्रेटर देन 8 वी विल ऐड परसेंटेज साइन, ठीक है। अप टू 7 तक वी गॉट एस्टेरिक्स, 8 और ग्रेटर देन 8 के लिए ये लोग परसेंटेज साइन यूज कर रहे हैं, राइट। तो नाउ वी कैन फाइंड द व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ओके। तो अभी हम मेरे पास फिलहाल 3 है, तो 3 के लिए ढूंढ लेते हैं, ओके। तो आई मीन 3 किसका कोड बनेगा, अच्छा देखिए इधर दे लार्जर का कोड तो बन चुका है $30, ठीक है। इफ दिस इज गिवन इन अनऑर्डर्ड फैशन टू यू, तो आप कैसे निकालोगे, देखिए लार्जर का कोड तो आपका है Z एट द, बिकॉज फर्स्ट ववेल इज A, और बाकी तो 6 लेटर्स है आपके, 30 सही है ये। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का कोड्स वी आर नॉट हैविंग, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स, राइट। तो 8 के लिए वी शुड हैव 40, 8 इंटू 5 40, बिकॉज हायर के लिए देखिए I इज द फर्स्ट ववेल और I का रिवर्स है R, एंड दिस इज 6 लेटर्स, तो 30, और डॉलर 6 के लिए वी हैव डॉलर। अमाउंट का भी वी हैव, अमाउंट में फर्स्ट ववेल इज A, तो Z $30, 6 इंटू 5 30, नो प्रॉब्लम। तो इंटरेस्ट का कोड वी नीड टू फाइंड, दैट इज व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ 3, राइट। तो चलिए इंटरेस्ट का कोड निकल देते हैं फटाक से। इंटरेस्ट का कोड, इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट वी शुड हैव, इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर के प्लेस में तो वी शुड हैव 8 इंटू 5, that is 40, तो 40 we should get 40 here. First vowel is I, तो I का रिवर्स क्या होना चाहिए, 27, और I का प्लेस वैल्यू होता है 9, राइट। तो 27 माइनस 9 18, 18 मतलब R, ओके, R, एंड वी आर हैविंग 8 लेटर्स, तो वी कैन से R परसेंटेज 40, सो दिस इज द कोड फॉर इंटरेस्ट, ओके। तो नंबर 3 का हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अच्छा, 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 2 के प्लेस में क्या वर्ड आ सकते हैं, इसके लिए आई गेव यू 4 ऑप्शंस, याद है आपको, आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। अगर नहीं लिए इसको थोड़ा बैक में ले जाके क्वेश्चन पे आओ, उसको स्क्रीनशॉट लेके फिर वापस इस टाइम इंटरवल पे आओ, दैट इज 23:45, ओके। तो 2 के लिए वी हैड रजिस्टर्ड, और क्या था, कुछ भी ऑप्शंस था। तो उन ऑप्शंस में से अगर मैं चेक करूं तो फाइनेंशियल में तो R मॉड्यूलस 90 हो गया, इंस्टीट्यूशन रिसिव्ड R परसेंटेज 110, ठीक है। ये V परसेंटेज 50 शायद 2 के लिए ही आया होगा, राइट, बिकॉज ऑलवेज आई इज हैविंग 6 लेटर्स, 6 के लिए 30 और Z, ओके, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग दिस, इसके प्लेस में वी कैन सॉल्व इट। तो 2 के लिए क्या आएगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो वी आर हैविंग द कोड V मॉड्यूलस 50। तो इन सारे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको वर्ड फाइंड करना हो, देखिए वैसे तो बहुत सारा वर्ड हो सकते हैं, राइट, बिकॉज V, तो V कम्स बाई 27 माइनस, मतलब राइट,
तो फर्स्ट वावेल आपका ई होना चाहिए एज पर दैट। तो फर्स्ट वावेल ई, ऐसे तो बहुत सारा वर्ड्स है और वो मेकिंग मतलब ये 5 × 10 50 भी होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको ऑप्शंस में से चूज करना पड़ता है कि किसके साथ ये बन रहा है। तो उधर if I check for register में REGISTRAR there are 9 letters, so 9 × 10 90 होना चाहिए था, but either we are having 50, right? So and in case of registered REGISTERED 10 × 10 we should get 100, right? So क्या होना चाहिए एग्जैक्टली कोड? ऑप्शंस को आप लोग अगर देखेंगे तो उनमें से शायद none of the words are coming to be right? So for that option D can be your correct answer कि none of these, okay? Because V तो आपको हर एक ऑप्शन में मिल जा रहा है बिकॉज ई इज इट्स फर्स्ट वावेल, ठीक है। बट ये 5 × 10 मतलब 5 लेटर्स होना चाहिए, ओके। तो ये आप लोग देख के ही बोल सकते हैं कि 5 × 5 लेटर्स का बनना चाहिए। तो ऑप्शंस में से जो भी है, सो नन ऑफ देम आर कोड फॉर 2, सो 2 इज ऑल्सो सॉल्व, ठीक, ओके। एंड नाउ अगर मैं 1 के पास जाऊँ, सो 1 आई मीन मनी के लिए क्या कोड आएगा? बैंक अकाउंट डिपॉजिट मनी एंड मनी के प्लेस में, सो मनी के लिए वी कैन फाइंड आउट द कोड मनी MONEY, so 1 2 3 4 5, so we should get 5 × 10 50, 5 × 10 50, then first vowel is O, so 27 minus 15 is 12, right? 12 means we should get L, so L, okay. And 5 के लिए what symbol we have? Hashtag, so L hashtag 50 is your code for money, okay? तो ये this was a very interesting question I found. ये इनफैक्ट कुछ एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, okay, for some aptitude tests. दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। और ये मैंने आई हैव ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, आई हैव ऑल्सो सर्च इन यूट्यूब फॉर द सॉल्यूशन, बट मुझे कहीं पर मिला नहीं, तो आई थॉट ऑफ सॉल्विंग दिस। तो होप यू गाइज फाउंड दिस इंटरेस्टिंग। एक बार ज़रूर आप मतलब ये सॉल्यूशन देखने से पहले, जब मैं पहले पार्ट में बोल रहा हूँ आपको पॉज करने को, एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा खुद से। ऐसे और भी पजल्स हैं, एंड इनफैक्ट दीज कोड्स आर गिवन इन ओरिजिनली दे आर गिवन अनऑर्डर्ड इन अनऑर्डर्ड फैशन, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज।